Hello. So today we are going to talk about LST CLAT 2026. I'm your friend Shashank, and we are going to discuss about TSD. That what are the basic concepts that we are going to talk about TSD, what kind of questions, what kind of sets we have seen in TSD. So let's start. So am I going to cover a lot of concepts in TSD? No, I'm just going to do very basic concept of TSD, couple of things I'm going to talk about, and I'm going to try solve all the questions from those basic concepts. You don't have to worry about a lot of things. You don't need to worry about knowing a lot of multiple concepts in TSD. Just a couple. The first concept is we all of us know that distance is equal to speed into time. That is the basic formula of TSD. That is one thing that we are going to talk about. The second thing is average speed. So generally, people think that average speed is defined as the averages of the speed. That's not true. So average speed is defined as total distance upon total time. So that is something that we are going to talk about. Total distance upon total time. That's the average speed. And the last concept we are going to talk about, that is going to be sorry, that is going to be relative speed. Now, what is relative speed? So a humble request to all of you that whenever you feel uncomfortable in any of the concepts or anything, kindly do post a message. Good evening, Pranshil. So just drop a message. I'll respond to that message. Okay. So so basically distance is equal to speed into time. Everyone knows average speed is equal to total distance upon total time. That's also fine. Important point is relative speed. What is relative speed? And how we are going to use a relative speed. So, for example, try to understand this. There is one guy who's good evening, Natasha. So there is one guy. There are two people who are standing at same point, at standing at same point and same time. First person, let's call them A and B. So A is going with a speed of 40. B is also going with a speed of 40. Fine. So in 1 hour, both of them are going to cover 40. So who's getting ahead of whom? No one. The distance between both of them is going to be same. Right. After 2 hours, the distance is zero because both are going to cover same distance. After 3 hours, again it is going to be zero because both of them are starting from the same point and same time. ये इतना क्लियर है सबको, right? Now one person is going with a speed of 40, another person is going with a speed of 50. So second person is getting ahead of the first person with a speed of 10 kilometers per hour. Right, in the first hour he is going to gain 10 kilometers. In the second hour he is going to gain 10 more kilometers. In the third hour he is going to gain 10 more kilometers. So in the second scenario, I can say B is getting away from each other with a speed of 10. Make sense? So in that case, we can say that relative speed is equal to 10. So relative speed, what is 10? That is 50 minus 40. So relative speed is defined as a speed, defined is it is a speed at which one person is getting away from second person or it is coming closer to each other. So relative speed is defined as the speed at which two people are getting away from each other or they are coming together, coming towards each other. Okay. Up there is one person, there are two people like this. One person is going in this direction with a speed of 40, second person is going in this direction with a speed of 40. Right, Pranshil, we can say that. Now, after 1 hour, what is going to be the difference? What is going to be the distance between them? एक जा रहा है 40 से, दूसरा जा रहा है 40 से. So one person is going with a speed of 40, second person is going with a speed of 40. They are starting from the same point at the same time. So what is the relative speed, you can say? So we can say that a relative speed, so basically
This person is going to cover 40, second is going to cover 40. So after 1 hour, distance between them is 80. After 2 hours, it is going to be 160. After 3 hours, it is going to be uh, 240 and so on. So when direction is same, right? When direction is same, this is S1, this is S2. When direction is same, relative speed is defined as S1 minus S2. When direction is different, opposite, I would say, the relative speed is defined as S1 plus S2. So हम जनरली क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड में, वी अज्यूम दैट वन ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक, एक ऑब्जेक्ट है जो खड़ा ही है, मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो दूसरे आदमी की जो भी स्पीड होगी, दैट स्पीड इज कंसीडर्ड एज द रिलेटिव स्पीड। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू गो विद द फर्स्ट एग्जांपल कि देयर आर टू पीपल, एक 40 से जा रहा है, दूसरा 50 से जा रहा है। तो आई अज्यूम दैट फर्स्ट पर्सन इज स्टैटिक, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। तो सेकेंड पर्सन की जो हम स्पीड लेंगे, दैट विल नॉट बी 50, दैट इज गोइंग टू बी 10 किलोमीटर्स पर आवर ओनली। So whenever we use relative speed, we assume that one object is static and second person is always going to move with a relative speed. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। The distance, there are two people, they are 100 meter apart. There are two people, they are 100 meter apart. A is going with a speed of 9, B is going with a speed of 11. ये लोग कितनी देर के बाद मिलेंगे? After how much time? So let's say speed is 9 meter per second. This is 11 meter per second. After how much time they are going to meet? What would be the answer in this? There are two people, they are 100 meter apart. A is moving with a speed of 9, B is moving with a speed of 11. After how much time they are going to meet? Okay. So it's 9 meter per second and 11 meter per second. A and B, and it is the distance between them is 100 meters. How much time? अच्छा देखो, डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम इज अपोजिट और नॉट? हाँ है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। If I assume that A is static, A is not moving at all, then speed of B is going to be 20. Okay. What is the distance? 100. So how much time? 100 cover करना है with a speed of 20. So how much time? 5 seconds. And that's the answer. Understood? So this relative speed is going to be 20 meter per second. Make sense? सो एक ऑब्जेक्ट को स्टैटिक अज्यूम करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा रिलेटिव स्पीड से मूव करेगा। सो इफ यू आर अज्यूमिंग, आई एम अज्यूमिंग ए इज स्टैटिक, देन बी मस्ट बी मूविंग विद अ रिलेटिव स्पीड। अच्छा देखो प्रांशल, व्हाट आई एम डूइंग, अब प्रांशल, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि ए और बी दे आर 100 meters apart, A is moving with a speed of 9, B is moving with a speed of 11, and they have to meet. After how much time they will meet? That's the question, right, Pranshul? Now both of them are coming closer to each other. मतलब एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, right? Direction is opposite, right? If direction is opposite, and then what is going to be the relative speed? Relative speed is going to be 20, क्योंकि एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, so relative speed add हो जाएगी. So can I say they are coming towards each other with a speed of 20, right? So to meet, they have to cover a distance of 100 with a speed of 20 meter per second. So how much time? 5 seconds, 100 upon 20. That's it. Got the answer? Clear है ना?
Now, what we have, okay, uh, there is when we talk about a question of car or a person, it's fine, we can solve it easily. But when we talk about a question of train, so ट्रेन का क्वेश्चन जो है वो बाकी कार के क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, या फिर वो किसी और एक आदमी मूव कर रहा है उसके क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट होगा, राइट? सो अ ट्रेन हैज ए लेंथ, और ट्रेन की लेंथ नेग्लिजिबल नहीं होती. The length of the train is not negligible. The length of the train is huge. It is 400 meters, 500 meters, 700 meters. So basically, the length of the train is never negligible. So basically, when I say that a train crosses a person, तो ट्रेन जब एक पर्सन को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन क्या कितनी लेंथ कवर कर रही है? कैन आई से ट्रेन इज गोइंग टू कवर इट्स ओन लेंथ? हाँ या ना? राइट. When a train is crossing the length of when a train is crossing a platform, then what is it covering? क्या क्या कवर करेगी जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी? So when a train crosses a platform, what does it cover? In that case, train covers its own length plus length of the platform. When two trains cross each other, what do they cover? They cover length of the first train and length of the second train. Remember this. So when we talk about two trains, then what length is covered? Both lengths. When train crosses a platform, what does it cover? Its own length plus the length of the platform. So basically, अंडर अंडरलाइन कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बताओ, otherwise we'll see the questions and you are going to see with this basic knowledge you can solve all the questions. Okay, देखते हैं. Question number 1, what does it say? Shatabdi Express, it has a length of 180 meters. It can cross a pole in 12 seconds. Okay. So when train is crossing, Pranshil, we have this example itself, right? So Shatabdi is, it has a length of 180 meters and it crosses a pole in 12 seconds. So when a train crosses a pole, what does it cross? Its own length, right? So the train is covering its own length, that is 180 meters, in how much time? 12 seconds. So what is the speed of Shatabdi train? कितना आएगा? That is going to be 180 upon 12. क्योंकि अगर ट्रेन जो है वो अगर वो एक ब्रिज को एक पोल को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब अपनी लेंथ क्रॉस कर रही है. सो टू कवर इट्स ओन लेंथ, it is taking 12 seconds, so it is covering 180 meters in 15 seconds, right? Huh. So sorry, in 12 seconds, so what is the speed? That is 15 meter per second. ठीक है? If I am, sorry, it's not, it's 5. If I'm talking about Agast Kranti Express, so speed of Agast Kranti Express, what is the speed? That's going to be 20 meter per second. Higher ना? Check. 1 kilometer per hour is given to us as
व्हाट 5/18 मीटर पर सेकेंड. सो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, और यू कैन से 1 मीटर पर सेकेंड कैन बी सेड एज 18/5 किलोमीटर पर. So both are fine. So मतलब आपको ये पता होगा. So basically if I have to convert meter per second into kilometer per hour, I can do that. ठीक है. So I am going to calculate 15 into 18 by 5. So that is going to be 54 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड जो होगी वो या तो 15 मीटर पर सेकेंड होगी या 54 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड क्या होगी 20 इंटू 18/5, और आई कैन से 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. So whenever you need to convert kilometer per hour, you can multiply by 5/18. If you want to convert meter per second to kilometer per hour, you multiply by 18/5. So basically मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, बस स्पीड निकाली है, आगे कुछ नहीं सोचा. ठीक है. Now I am just going to solve the questions. So find the time taken by the faster train. Now which is the faster train? That is Agast Kranti, right? It is going to cover a faster bridge of 280 meters. ठीक है. So इसका मतलब if it is going to cross a bridge, what does it crosses? It crosses the bridge plus its own length. So how much it is going to cross? That is going to be 520. What is the speed? 20. So how much time? Adwa, that the answer you are giving is the answer of the slower train. क्योंकि फर्स्ट ट्रेन जो शताब्दी है उसकी जो स्पीड है वो 15 है, और जो अगस्त क्रांति है उसकी जो स्पीड है दैट इज 20. So which is the faster train? That's the Agast Kranti. Did you understand that? So the length will be 240 and the length of the bridge is going to be 280. So total distance traveled is going to be 520 and with a speed of 20. So that comes out to be 26, right? समझ में आया? Yeah, you need to divide it by 20, right? Now let's move to the next question. What? Now both the trains are traveling in the same direction. Both the trains are traveling in the same direction. मतलब ये ऐसे जा रही है एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है, and this is slower train, so its speed is 15. This is faster train, its speed is 20. अब कितनी देर में फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर लेगी? Now what would be the answer of this? So basically, length of the slower train is 18, length of the faster train is 240. So when two trains are crossing each other, what is the length they are crossing? That is the length of both the trains. So they are going to cross a total of 420. ठीक है. जब क्रॉस कर रही है और दोनों ट्रेन की डायरेक्शन क्या है? दैट इज सेम, राइट? सो अगर मैं एक ट्रेन को स्टैटिक लेके चलूंगा, सो सेकेंड ट्रेन किस स्पीड से जा रही होगी? रिलेटिव स्पीड से. सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू बी रिलेटिव स्पीड?
तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये ट्रेन बस खड़ी है, ये ट्रेन चली नहीं रही है, तो दूसरी वाली ट्रेन किस स्पीड से चलेगी? 5 से। सो व्हाट इज द टोटल टाइम? दैट इज 420 डिवाइड बाय 5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 84 seconds. Now can I say 84 seconds is equal to what? 1 minute and 24 seconds. Do we have that as an option? Yes, that's my option B. समझ आई सबको? Everyone understood? क्या किया क्या नहीं? Advap, if you understand, there are two objects that are moving in the same direction, right? So when two objects, okay, संयोग, so ink pen change कर लेते हैं. So when two objects are moving in the same direction, ठीक है. अच्छा प्रांशल, देखो एक चीज समझो, ये जा रही है 15 से, ठीक है, ये जा रही है 20 से, ठीक है. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गोइंग टू बी, दोनों को क्रॉस करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी वो 180 प्लस 240 होगी या नहीं होगी? संयोग, इज इट स्टिल नॉट विजिबल? प्रांशल, डिड यू गेट दिस पॉइंट कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होगी क्रॉस करने के लिए दैट इज गोइंग टू बी 180 प्लस 240? यहां तक हम क्लियर है ना कि व्हेन टू ट्रेन्स, अच्छा देखो, ट्रेन, व्हेन अ ट्रेन इज क्रॉसिंग इटसेल्फ, ठीक है, व्हेन अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, तो क्या क्रॉस कर रही है? वो अपनी खुद की लेंथ क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ है ना? When train is crossing a platform, it is covering a total distance of itself plus the length of platform, right? And when two trains are crossing each other, तो क्या कवर कर रहे होंगे वो? दोनों ट्रेन, पहले ट्रेन अपनी लेंथ कवर करेगी, फिर वो दूसरी ट्रेन की लेंथ कवर करेगी, तभी तो क्रॉस करेंगे. डिड यू गेट दिस पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गोइंग टू बी ये वाली ट्रेन की लेंथ प्लस ये वाली ट्रेन की लेंथ. सो टोटल लेंथ ट्रैवल्ड इज गोइंग टू बी 420. ठीक. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि पहले वाली ट्रेन चली नहीं रही, पहली वाली ट्रेन रुकी हुई है, राइट? मतलब मैंने मान लिया प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन नहीं है, प्लेटफॉर्म है. दूसरी ट्रेन को कवर करना है अपनी लेंथ, दैट इज 240 प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ 180. लेकिन whenever we assume one object is static, मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, then second object always moves with the relative speed. तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है. So when direction of both the objects is same, then we use relative speed, and relative speed is given by s2 minus s1. If direction is opposite, we use s2 plus s1. अंडरस्टूड? तो जब मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये रुकी हुई खड़ी है, तो दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 5 की स्पीड से चल रही होगी, 20 से नहीं. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है. सो आंसर कम्स आउट टू बी 1 hour 24 minutes. सो इट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 420 विद a स्पीड ऑफ 5. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ दिस वन. Now during this particular journey, the speed of Shatabdi train, Shatabdi Express is increased by 20%. ठीक है. So यहाँ पे देखते हैं शताब्दी की स्पीड है कितनी. The speed of Shatabdi is, we know it's 15, right? And speed of August Kranti is 20. So speed of Shatabdi is increased by 20%. ठीक है. अब 20% हम जल्दी कैसे निकालेंगे? 15 का 10% क्या होगा? What is 10% of 15? Shatabdi is this one, not this one. So 10% of 15 is 1.5. So 20% of 15 is going to be 3.
सो स्पीड जो है शताब्दी की, करंट स्पीड इज गोइंग टू बी 18। क्लियर? ठीक है, तो 20% निकालना हो तो पहले 10% निकाल लो, उसका डबल करके ऐड कर दो। ठीक है, अब ये है कि ये प्लेटफॉर्म कवर कर रही है 40 सेकेंड्स में। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? 180। So it is in 40 seconds with a speed of 18, it is going to cover a total distance of 720. Hi Anna. Now in that 720, it covers its own length plus length of the platform. What is the length of the platform? 540. Hi Anna. अब क्या है कि क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 540, अगस्त क्रांति की आ गई 240। व्हाट इज द रेशियो? 6 9 6 4 सो आंसर कम्स आउट टू बी 9:4। दैट इज ऑप्शन ए। समझ आया? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जहां पे किसी को कोई भी डाउट हो, काइंडली डू लेट मी नो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज पी एंड सिटीज आर। ठीक है, अभी तक हमने इस पे कोई बात ही नहीं की, तो एक मिनट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पीड इज 54 एंड 72। ठीक, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। एंड व्हाई आई एम टेकिंग अबाउट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? बिकॉज if you see it, the time is given in hours, so let's, and distance किलोमीटर में, तो हम लोग अपना किलोमीटर की बात करें। ठीक है, प्रांशन समझ में आया 720 क्यों आया? क्योंकि स्पीड इज 18, टाइम टेकन इज 40, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गोइंग टू बी 18 into 40। समझ आ गई बात? ओके, अब पे क्या है कि शताब्दी निकली पी से, सो दिस इज पी। ओके, अगस्त क्रांति निकली कहां से? आर से। ठीक है, ये कितने बजे निकली? 11 बजे। सो शताब्दी, स्पीड ऑफ शताब्दी इज 54। ठीक है, ठीक है, स्पीड ऑफ द सेकेंड वन अगस्त क्रांति इज व्हाट? दैट इज, इट इज गोइंग लाइक दिस एंड इट्स स्पीड इज 72। ठीक है, और ये आर की तरफ चले एंड आफ्टर 2.5 hours, मतलब ये चली 1:30 बजे। ठीक है, और ये दोनों ट्रेन मीट करी कितने बजे? 4 बजे। ठीक है, यहां तक हम क्लियर है, राइट? स्पीड ऑफ अगस्त क्रांति। ठीक है, शताब्दी 11 बजे चली, इट स्टार्टेड एट 11, इट at till this point how many hours it traveled? 11 पे चली, 4 बजे पहुंची इस पॉइंट पे, so how many hours it traveled? It traveled for 5 hours, है ना? 11 से 4 5 घंटे चली। विद व्हाट स्पीड? 54। तो कितना डिस्टेंस रहा होगा? So this distance is going to be 270, 54 into 5। ठीक है, उसके बाद ये 1:30 बजे से लेके 4 बजे, मतलब 2.5 घंटे। ये कितना चली? 2.5 hours। विद व्हाट स्पीड? सो इट विद ए स्पीड ऑफ 72, सो 2.5 hours में कितना चलेगी? सो 2.5 hours को मैं 5/2 ले लेता हूं, तो कितना चलेगा? 36 into 5, दैट इज गोइंग टू बी 180। मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? 180।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 270 प्लस 180 एंड दैट कम्स आउट टू बी 450 एंड दैट्स इट वी गॉट द आंसर. क्लियर है? So in 5 hours, the first train covers 270 in 2.5 hours. Second train covers 180. So total distance comes out to be 270 plus 180, and that comes out to be 450 kilometers. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम. This one. Now question is saying find the time taken. Okay. वापस से I'm writing everything as it is. So the 4 o'clock thing is here. 1:30 is here. 11 o'clock is here. This distance is 270. This distance is 180. कितना आएगा आंसर? जल्दी बताओ. This is August Kranti and this is your Shatabdi. जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा इसका. ठीक है. ईशा कैसे किया? अच्छा देखो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई टेक अ डिफरेंट अप्रोच. कैसे? अगस्त क्रांति को 180 किलोमीटर कवर करें. क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त क्रांति मिलने के बाद मतलब इस पॉइंट के बाद कितना टाइम ले रही है यहां पहुंचने के लिए. हाँ या ना? यही बोल रहा है क्वेश्चन. ठीक है. तो अगस्त क्रांति 180 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट ले रही है. मतलब 90 कवर करने के लिए कितना ले रही होगी? 1 आवर 15 मिनट्स. मतलब 270 कवर करने के लिए कितना चल रही होगी? 3 आवर्स 45 मिनट्स. सो 270 कवर करने में 3 आवर 45 मिनट्स लेगी एंड दैट्स माय ऑप्शन डी. दैट्स इट. अंडरस्टूड? मतलब basically you can also do that is 270 divided by 72 because distance is 270, speed is 72. So your answer, you will get your answer, right? Isha, your answer is fine. That is also a right answer, right? I am just giving an alternate approach कि मतलब अगर मुझे करना होगा so I'll go like this. ठीक है. क्योंकि 270 upon 72 I don't think it's a very easy value. राइट. सो उसमें क्या है कि 180 कवर करने में एंड व्हाई आई एम सेइंग 180 कवर करने में 2 आवर 30 मिनट्स लग रहा है क्योंकि ये हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं. तो ये मुझे कैलकुलेट नहीं करना है. ठीक है. ये वैल्यू मुझे पता है इसलिए ये वाला अप्रोच ठीक हो जाता है. अगर मुझे ये वैल्यू नहीं पता है देन आई एम गोइंग टू गो विद दिस अप्रोच ओनली. अंडरस्टूड? So whenever I solve a question, what do? I always pick the data from the previous question. तो अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो. So in this question, I didn't calculate speed. मैं स्पीड मैंने पहले कैलकुलेट की थी. So I went back to the first slide, got it from there. ठीक है. So जो भी हम कर रहे हैं मैं बार बार टू एंड फ्रो करता रहूंगा लेकिन उसमें वो थोड़ा सा खराब हो जाता है. उसमें क्या कहते हैं हर क्वेश्चन में वैल्यूज कैलकुलेट करना. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रेस. ठीक है. अब रेस में क्या कंसेप्ट है ये समझते हैं. इसमें क्या है कि इन 360 मीटर रेस. ठीक है. तो इसका मतलब रेस जो है रेस दो लोग दौड़ रहे हैं. बी बीट्स ए बाय 90 मीटर्स. मतलब बी यहां पे पहुंचा तो ए बी से 90 मीटर पीछे था. क्या हम ये बात बोल सकते हैं? हाँ या ना?
और बी 15 सेकेंड से भी जीत गया। मतलब इसका मतलब ये है कि व्हेन बी रीच्ड हियर, ए 15 सेकेंड के बाद यहां पे पहुंच गया। सो इसका मतलब ए 15 सेकेंड में 90 मीटर कवर कर रहा है। इट मीन्स स्पीड ऑफ ए इज गोइंग टू बी 6 मीटर पर सेकेंड। है ना? ठीक। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 360। तो ए को कितना टाइम लगा होगा टोटल? ए को टोटल टाइम लगा होगा कितना? 360 by 6 मीन 60 सेकेंड्स। यहां तक क्लियर है? ये ए का टाइम है, तो बी का टाइम कितना होगा? बी को पूरा पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 45 सेकेंड्स लगा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अब बी की स्पीड क्या आएगी? द टोटल लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक, दैट इज 360 डिवाइड बाई 45। अच्छा, इसको क्या जल्दी करने का कोई तरीका है हमारे पास? 360 डिवाइड बाई 45 कैसे कर सकते हैं जल्दी? इसको अपन लिख सकते हैं 360 डिवाइड बाई 45 इज 90 बाई 2। 8। सो बी की स्पीड कितनी आ गई? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो ए की स्पीड आ गई मेरी, बी की स्पीड आ गई मेरी। ठीक है, डी की स्पीड क्या आएगी? व्हाट विल बी द डीज स्पीड? So ratio of speed of V and D is 2:3. Means if speed of B is 8, speed of D is going to be 12. Right? Okay. Now the last statement says that C beats A by in 180 meter race. In 180 meter race, C beats A by 10 seconds. So how much time A will take to cover 380 meters? How much time A will take to cover 180 meters? That is 30 seconds. ठीक है ना? ए की स्पीड है 6, टोटल करना है 180, कितना टाइम लगेगा? 30 seconds. So how much time C is going to take? C is going to beat A by 10 seconds. मतलब A का टाइम C से 10 सेकेंड ज्यादा होगा। So C का कितना आ जाएगा? 20। C का टाइम आ जाएगा 20 seconds. So in 20 seconds C is going to cover 180 meters. So speed of C comes out to be 9. अब ये बताओ कि यहां तक किसी को कोई डाउट है? Till this point, anyone has any doubt? ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। Now, what is the ratio of speed of C and D? So C's speed is 9, D's speed is 12. So C की स्पीड क्या है? 9, D की स्पीड क्या है? 12. दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है? Okay, Isha, you are talking about ratio of speed of B and D. So ratio of speed of B and ratio of speed of D is equal to 2:3. तो अगर B की स्पीड 8 है तो D की कितनी होगी? That's 12, right? So the ratio of speed of C and D, directly option D, 3:4, 9:12. Very nice, everyone got it right. Now this one,
In 750-meter race between B and D, B gets a head start of 150. अच्छा, so basically what is happening? B की स्पीड कितनी है? 8. D की स्पीड कितनी है? 12. राइट, ठीक. अब क्या हो रहा है कि हाउ मच D is going to cover? How much D is going to cover? A total of 750. ठीक है. How much B is going to cover? B is so basically this is a start point of D, this is a start point of B, and this is 150, right? तो इसका मतलब B को 600 चलना और D को कितना चलना है? 750, राइट? ठीक है. सो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ठीक है. दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है? 2:3. हाँ है ना? देखो मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूं. सो दोनों की स्पीड का रेशियो है 2:3. नहीं, टाइम वाइम कुछ नहीं निकालेंगे, बिना उसके कर लेंगे बड़े आसानी से. दोनों की स्पीड का रेशियो है 2:3. ठीक है. तो जितनी देर में बी 20 चलेगा उतनी देर में डी कितना चलेगा? 30. क्या हम ये बोल सकते हैं? हाँ है ना? क्या मैं ये बोल सकता हूं जितनी देर में बी 600 चलेगा उतनी देर में डी 900 चलेगा? रेशियो 2:3 होना चाहिए. हाँ है ना? इसका मतलब बी यहां से यहां पहुंचा, डी तो आगे लगा दिया, डी तो क्रॉस करके बहुत ही आगे चला गया. क्या ये हो सकता है? ये तो नहीं हो पाएगा. तो इसका मतलब जितनी देर में डी 750 चलेगा उतनी देर में बी 500 चलेगा. हाँ है ना? तो इसका मतलब डी ने यहां से शुरू किया, डी यहां पे पहुंच गया, ठीक है, उतनी देर में बी 500 चला. मतलब बी यहां से लेके यहां पे 500 चला, मतलब बी अभी भी 100 मीटर पीछे है या नहीं है? तो कौन जीता? डी. विद व्हाट मार्जिन? 100 मीटर्स. आंसर क्या आया? सी. सीधे सीधे रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ में आई बात? क्या हमें टाइम वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी इसमें? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए बी सी तीनों सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं. ठीक है. सो ए बी सी तीनों एक सर्कुलर पॉइंट में, सर्कुलर ट्रैक में शुरू कर रहे हैं अब. और सर्कुलर ट्रैक जो है वो कितने का है? 300 मीटर का. ठीक है. ए की स्पीड क्या है? 6. बी की स्पीड क्या है? 8. और सी की स्पीड क्या है? 9. ठीक है. ठीक. अब ये तीनों पहली बार कब मिलेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे? हम्म. स्पीड सही लिखी है ना तीनों की? ऑफ 300 मीटर्स. स्पीड सही लिखी है ना? 6, 8 और 9. ठीक है. हाँ. ये लोग पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे? ठीक है. कैसे निकालेंगे?
अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कितना सिंपल तरीका है। ए को कितना टाइम लगेगा पूरा चक्कर मारने में? ए को लगेगा 50 सेकेंड। बी को कितना टाइम लगेगा? 300/8। 300/8 कितना होगा आपका? 300/8 इसको बोल सकते हैं 75/2। यही आएगा। सी को कितना टाइम लगेगा? 300/9 या फिर 100/3। क्या हम ये बोल सकते हैं ए को पूरा चक्कर मारने में 50 सेकेंड लग रहा है, बी को पूरा चक्कर मारने में 75/2 लग रहा है, सी को पूरा चक्कर मारने में 100/3 लग रहा है? हाँ ना? तो इसका मतलब ए हर 50 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, बी हर इतनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, सी हर इतनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। सो इन ये लोग कितनी देर के बाद मिलेंगे? इन तीनों टाइम का एलसीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ है ना? जो फाइनल टाइम होना चाहिए वो तीनों टाइम का एलसीएम होगा या नहीं होगा? राइट। एलसीएम का मतलब ये हो गया कि मेरा जो टाइम होना चाहिए वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा टाइम 50 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे? अरे संयोग, एलसीएम लेना क्यों है? कौन सा टाइम 50 का मल्टीपल है? दैट इज ऑप्शन ए। सीधे आंसर आ गया। 270 is not a multiple of 50, 180 is not a multiple of 50, 360 is not a multiple of 50। इसका मतलब मेरे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज 300 सेकेंड्स। मिनट तो देखो ही मत, मिनट को कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। समझ आई बात? तो एलसीएम जब लेने की बात है तो एलसीएम नहीं ले रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी, सी और डी सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। ये लोग पहली बार कब मिलेंगे? ठीक है। अच्छा, अब तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए 50 सेकेंड के बाद जा रहा है, पूरा चक्कर मार रहा है, बी 75/2 सेकेंड के बाद पूरा चक्कर मार रहा है, और सी 100/3 सेकेंड के बाद पूरा चक्कर मार रहा है। राइट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो मिलने का टाइम होगा वो तीनों टाइम्स का एलसीएम होगा या नहीं होगा? राइट। तो इसका मतलब एलसीएम का मतलब जो नंबर होना चाहिए वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए, 75/2 का मल्टीपल होना चाहिए और 100/3 का मल्टीपल होना चाहिए। राइट। तो मैं देख रहा हूं कौन सा ऑप्शन 50 का मल्टीपल है। एक ही ऑप्शन है। समझ आए बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। क्या कह रहा है? So basically, I don't have a space, so I am going to erase everything over in this page. Now I am going to solve next question. Now perimeter is 720। अब B जो है, B को कितना टाइम लग रहा है? B की स्पीड है कितनी? 8। C की स्पीड है 9 और D की स्पीड क्या है? 12। सो B को लगा 90 सेकेंड। ठीक है। इसको कितना लगा दूसरे बंदे को? C को लगा 80 सेकेंड और तीसरे को लगा 60 सेकेंड। ठीक है। 9 into 6 कितना आएगा? 540। 540 80 का मल्टीपल तो नहीं है, हटाओ। 12 into this दैट इज 720, सबका मल्टीपल है। दिस इज 600। 600 आपका 90 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 15 into 60 दैट इज 900। 980 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को सेकेंड में लिखो और देखो अगर एलसीएम है तो सबका मल्टीपल होना चाहिए। राइट। सो आई एम सिंपली एलिमिनेटिंग द वैल्यूज देमसेल्व्स, कि जो मल्टीपल नहीं है हटा दो। क्लियर है?
अंडरस्टूड? अगर एग्जाम में आएगा तो एलसीएम नहीं निकालेंगे, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट 3 ऑप्शंस, क्योंकि एलसीएम निकालना पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना पेन हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला। ठीक है, ए बी सी डी सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हैं, और किस से चल रहे हैं? ठीक है, ओफो, अच्छा, ए की स्पीड क्या है? 6, बी की क्या है? 8, सी की क्या है? 9, और डी की क्या है? 12। ओफो, सबका टाइम क्या होगा? दिस इज 360, तो टाइम क्या होगा? 60। ठीक है, इसका कितना होगा? 45। ठीक है, इसका कितना होगा? 40। ठीक है, इसका कितना होगा? 30। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है? ठीक है, अच्छा, किसी को पता है एलसीएम जल्दी कैसे निकालेंगे, सारे नंबर्स का एलसीएम? एनीवन नोस हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम वेरी क्विकली? अच्छा देखो, 45 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, दैट्स आल्सो अ गुड अप्रोच। 45 और 30 का मल्टीपल क्या होगा? 90। ठीक, 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 120। 120 और 90 का एलसीएम क्या होगा? मतलब 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? बस आ गया एलसीएम। एलसीएम सारे नंबर्स का कभी एक साथ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, हमेशा पेयर पेयर बना के छोटे छोटे करके निकालते रहो। अंडरस्टूड? अब देखो, इसकी स्पीड क्या है? 12। ठीक है, कितने चक्कर मार्च, कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? सो डी इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 12 फॉर हाउ लॉन्ग? 360। हाँ ना? क्लियर? सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? दैट इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज ध्यान से देखना, ये वैल्यू 4000 से, ये वैल्यू 3600 से तो ज्यादा बड़ी है। यहां तक क्लियर है? ये वैल्यू 3600 से तो ज्यादा बड़ी है, ये क्लियर है? इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? 0 2 6 12 यूनिट डिजिट इज 2। पूरी वैल्यू कभी भी मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहिए। एलिमिनेट द ऑप्शंस। गॉट इट? यूनिट 0 आया और यूनिट डिजिट आई 2, खत्म, बस। सो whenever you solve the questions, take try to understand your job is not to get the answer, your job is to eliminate the options। ठीक है, सो पूरा करना
डिफिकल्ट हो जाता है। सारे ऑप्शंस जो है वो उनको, मतलब अगर एलसीएम सारे नंबर्स का एक साथ लोगे, सो दैट विल बी लिटिल ट्रिकियर फॉर यू। ठीक है, सो जनरली हम वैसा नहीं करते हैं। अ, और बस इतना ही कह सकता हूँ। किसी को कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई भी डाउट अभी तक? अच्छा, संयोग क्वेश्चन इज सेइंग कि जब ये लोग मिलेंगे तो डी कितना चलेगा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डी? सो डी 360 सेकेंड्स इन लोगों को मिलने में लग रहा है, तो डी जो है वो 360 सेकेंड चल रहा है विद व्हाट स्पीड? विद स्पीड ऑफ 12। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डी पूछा हुआ। अंडरस्टूड संयोग? Why divide by संयोग? I didn't divide it. 12, this is 0. 12, 2 6 are 72. So unit digit comes, last two digits are 20. So that's the answer. Got it? 360 into 12. Last digit 20. So that gives me an option of C, 4320. Understood? Okay, and with this, we wind up the session. Anyone has any doubt, you can ask me now or you can drop a message in the comment box. We'll discuss. ठीक है, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ओके, कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई ज्यादा कंसेप्ट कंसेप्ट में फोकस नहीं करना है। अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड विद दैट आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने अभी तक अंडरलाइन प्रिंसिपल करे हुए हैं, प्रांशल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अंडरलाइन बेसिक है कि टीएसडी में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस लिटिल मोर क्वेश्चंस एंड डू वन थिंग। इफ यू हैव सम डाउट, मतलब कमेंट बॉक्स में अपना पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दो। तो वील पिक अप योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। सो उसमें टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, we'll cover everything. We'll take your every doubt if you have a doubt. And remember this point, doubt इसी के आते हैं जो पढ़ता है। ठीक है, so our job is to clear the doubts. Your job is to get the doubts. ठीक है, चलिए, take care, bye bye, good night, and I hope you like the session.